السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس گھنے جنگل میں کب سے رہ رہا تھا۔ البتہ قریب کی بستیوں کے لوگوں کو اتنا علم ضرور تھا کہ وہ اس جنگل میں اکیلا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے، اس لیے روپوشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ بعض لوگ سوچتے تھے کہ شاید اس کے ساتھ کسی نے بے وفائی کی ہے، جس کے کارن لوگوں کی نگاہوں سے دور اس گھنے جنگل میں آ بسا ہے۔ جنگل کے عین وسط میں اس نے درختوں کی چھال اور بڑی بڑی شاخیں جمع کر کے ایک عجیب سی کٹیا بنا رکھی تھی۔ قریب کی بستی کے لوگوں نے اسے کئی بار جنگل میں آوارہ پھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ قد کا لمبا ایک وجیح جوان تھا جو ایک میلا سا فرگل پہنے رکھتا تھا، جس کی جیبیں نامعلوم چیزوں سے بھری رہتی تھیں۔ یہ بات آج تک کسی بھی بستی کے شخص کو معلوم نہ ہو سکی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور جنگل میں کیا کرتا ہے۔ اس کی کٹیا اتنی چھوٹی تھی کہ اس میں وہ آسانی سے چل پھر بھی نہیں سکتا تھا۔ بعض اوقات تو بستی کے لوگ اس کٹیا کو دیکھ کر سوچتے تھے کہ یہ جنگلی اس میں داخل کیسے ہوتا ہوگا، مگر وہ کبھی بھی کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ جنگل میں اگر اسے کوئی ملتا تو اس کے پاس سے اس طرح گزر جاتا جیسے اس نے اس کو دیکھا ہی نہ ہو۔ جنگل میں دیر تک گھومنے پھرنے کے بعد جب وہ تھک جاتا تو اپنی کٹیا میں آ کر لیٹ جاتا۔ کٹیا کی دیواروں سے چھن کر آنے والی روشنی میں اس کا چہرہ بالکل سونے کا بنا ہوا معلوم ہوتا۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں بڑی کشش تھی۔ وہ ہر وقت کسی سوچ میں گم رہتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا کچھ کھو گیا ہے، جسے وہ کٹیا کے اندر اور باہر ہر وقت تلاش کرتا رہتا ہے۔ جنگل کے قریب کی بستیوں کی جوان لڑکیاں جب سرکنڈوں کی ٹوکریاں کاندھوں پر ڈالے کھٹے انار جمع کرنے کے لیے جنگل میں آتی تھیں تو انہیں ہر وقت ایک خوف رہتا تھا کہ کہیں وہ جنگلی انہیں دیکھ نہ لے۔ حالانکہ وہ اسے جنگل میں کئی بار دیکھ چکی تھیں اور یہ بھی جانتی تھیں کہ وہ کسی سے کچھ نہیں کہتا، پھر بھی ایک اندیکھا سا خوف ان کے چھوٹے چھوٹے دلوں کو دھڑکاتا رہتا تھا۔ وہ جب بھی اپنے بزرگوں کو اس جنگلی کے بارے میں بتاتی تو ان کے بزرگ ان سے یہی کہتے کہ وہ کوئی دیوتا ہے اور اپنے خیال کی مستی میں ڈوبا رہتا ہے، اسے دنیا داروں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مگر لڑکیوں کے دلوں سے اس کا خوف نہیں جاتا تھا۔ جب وہ سب مل کر درختوں پر چڑھتی تھیں تو ایک دو لڑکیاں کسی قریبی چٹان پر چڑھ کر دیکھتی رہتی تھیں تاکہ اگر جنگلی ان کی طرف آ نکلے تو وہ سب کو خبردار کر دیں اور بروقت بھاگ سکیں۔ ایک دفعہ تو بستی کے نوجوان لڑکوں نے مل کر یہ پروگرام بھی بنایا کہ کیوں نہ اس جنگلی کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ پھر ایک روز وہ سب اس کی تلاش میں کلہاڑیاں اور برچھے لے کر گھومتے رہے، مگر اس روز انہیں وہ جنگلی کہیں بھی دکھائی نہ دیا، جس کے بعد ان کے بزرگوں نے آسانی سے انہیں جنگلی کے دیوتا ہونے کا فیصلہ سنا دیا اور نوجوانوں سے کہہ دیا کہ خبردار آئندہ اسے کوئی بھی چھیڑنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ ساری بستیوں پر کوئی عذاب آ جائے گا۔ چونکہ وہ کسی سے کچھ نہ کہتا تھا، اس لیے بستی کے لوگوں نے رفتہ رفتہ اس کا خیال دل سے نکال دیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ البتہ ان کے دلوں میں اس کے بارے میں جاننے کا تجسس اب بھی موجود تھا۔ انہی دنوں جب ریاست کی شہزادی اس جنگل میں پہلی بار شکار کھیلنے کے لیے آئی تو جنگل کی قریبی بستیوں میں ایک میلے کا سا سما ہو گیا۔ دیہاتی کسان شہزادی کے کارکنوں کارندوں کی خدمات میں مصروف ہو گئے۔ اسی اثنا میں کسی بستی والے نے شہزادی کو اس جنگلی دیوتا کے بارے میں بتا دیا۔ شہزادی اس کے بارے میں سن کر بڑی حیران ہوئی اور اس کے دل میں جنگلی کو دیکھنے کی خواہش مچلنے لگی۔ بستی کے لوگوں نے شہزادی کو مزید بتایا کہ اگر آپ نیک ارادے سے اسے دیکھنے کے لیے جائیں گی تو وہ جنگل میں کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا، لیکن اگر کسی برے ارادے کے ساتھ جائیں گی تو اس کی پرچھائی بھی نہیں ملے گی۔ شہزادی نے شکار کا ارادہ ترک کر دیا اور سادہ لباس میں اس جنگلی کو دیکھنے کے لیے صرف 2 محافظوں کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑی، جنہوں نے اپنی تلواریں نیام میں ڈال رکھی تھیں۔ البتہ ایک بستی کا بزرگ ان کے ساتھ ساتھ تھا جس نے جنگل میں اس کی کٹیا دیکھ رکھی تھی۔ جب وہ چاروں جنگل کے دشوار گزار راستے سے گزر کر اس کی کٹیا کے قریب پہنچے تو شہزادی نے آہستہ سے کٹیا میں جھانک کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ چاروں تھوڑی دیر تک وہیں کھڑے رہے۔ بہت دیر تک کسی نے کسی سے کچھ نہ پوچھا۔ اتنے میں انہیں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی
उन्होंने मुड़कर देखा तो वो जंगली आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आ रहा था। जंगली के चेहरे पर कुछ थकन के आसार उभरे हुए थे और वो उनसे ज़रा दूर ही रुक गया था। इससे पहले कि वो उल्टे कदमों लौट जाता, शहजादी ने आगे बढ़कर कहा, हम सिर्फ आपको देखने के लिए आए हैं। जंगली कुछ देर तक उन्हें जलती हुई आंखों से देखता रहा, फिर कहने लगा, मेरी कुटिया में जगह नहीं, आप इस दरख्त के नीचे बैठ सकते हैं। वो सब जंगली के पीछे पीछे उस दरख्त के नीचे आ गए। वो दरख्त बहुत बड़ा और घना था, उसकी शाखें दूर तक दूसरे दरख्तों में घुसी हुई थीं। जब वो सारे उस दरख्त के नीचे बैठ चुके तो जंगली ने अपने फरगल की उभरी हुई जेबों से पीले रंग के कुछ पत्ते निकालकर सबको खाने के लिए दिए, मगर मुहाफिजों ने आगे बढ़कर शहजादी के हाथ से पत्ते ले लिए, जिस पर जंगली खड़ा हो गया। जंगली को नाराज होते देखकर शहजादी ने मुहाफिज के हाथों से एक पत्ता लेकर मुंह में रख लिया, जिसके बाद जंगली दोबारा उनके साथ बैठ गया। शहजादी को पत्तों का जायका इतना अच्छा लगा कि उसने मुहाफिजों से सारे पत्ते ले लिए और एक एक करके खाने लगी। शहजादी को देखते हुए बाकी लोगों ने भी अपने अपने पत्ते खा लिए। वो लोग बड़ी देर तक जंगली के पास बैठे रहे। शहजादी मुसलसल उसके चेहरे को तके जा रही थी, जो बिल्कुल सोने का बना हुआ दिखाई देता था और उसमें बला की कशिश थी। यूं लगता था जैसे शहजादी पहली ही नज़र में उस पर फरीफ्ता हो चुकी थी और उसके चेहरे से नज़रें हटाना उसके बस की बात नहीं रही थी। शहजादी कई रोज़ तक अपने मुहाफिजों के साथ उस जंगली से मिलने आती रही और फिर उसने एक दिन मुहाफिजों से कह दिया कि अब वो वापस अपने महल नहीं जाएगी, ये जंगल ही अब उसका मुकद्दर बन चुका है। मुहाफिजों ने शहजादी की बहुत मिन्नतें की, मगर उसने एक न मानी। यहाँ तक कि मुहाफिजों को मजबूरन बग़ैर शहजादी के ही वापस जाना पड़ा। जंगली ने शहजादी को बहुत समझाया कि वो यहाँ उसके सुख का ख्याल नहीं रख सकेगा, मगर शहजादी की रूह तो उस जंगली की आंखों के रेगजार में सीख की तरह उतर चुकी थी। शहजादी जब जंगली के साथ उसकी कुटिया में आई तो वहाँ सिर्फ घास का एक बिस्तर बिछा हुआ था, जिसके एक तरफ पत्थरों के तकिए रखे हुए थे। शहजादी का नाजुक बदन, जो अतलस व कम ख्वाब की नरमाहट में पलकर जवान हुआ था, घास के चुभने वाले उस बिस्तर का मुस्तहमिल नहीं हो सकता था। जंगली ने शहजादी की तरफ देखा और फिर उसके लिए अपना फरगल उतारकर घास पर बिछा दिया। फिर रफ्ता रफ्ता शहजादी का हुस्न मीठे जहर की तरह जंगली के दिल में उतरने लगा और वो उसे रात गए तक चांद की मध्यम रोशनी में देखता रहा। उन दोनों ने आपस में बहुत कम बातें की थीं, बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। शायद उनकी निगाहों को जुबान मिल चुकी थी और वो बगैर पूछे एक दूसरे से वाकिफ होते जा रहे थे। रफ्ता रफ्ता शहजादी जंगल में रहने की आदी होने लगी। वो दिन भर कुटिया के करीब छोटे मोटे कामों में मसरूफ़ रहती और जंगली दिन भर पीले पत्तों की तलाश में जंगल छानता रहता। कभी कभी तन्हाई में शहजादी को जंगली जानवरों की आवाज़ें खौफजदा करती तो वो लपक कर तीर कमान संभाल लेती और करीबी चट्टान पर चढ़कर बैठ जाती, मगर जंगली जानवर उसकी कुटिया के करीब कम ही आते थे। ताहम शहजादी जब नहाने के लिए दरिया पर जाती तो भी तीर कमान साथ ही रखती थी। एक रोज़ जब शहजादी नहाकर निकली तो उसके लिए उसके लंबे बाल उठाना बहुत ही मुश्किल हो गया। अब तो यहाँ उसे उसके पास कोई खिदमतगार भी नहीं थी जो उसके उलझे हुए बालों को संवारती और साफ करती। शहजादी के बाल बहुत ज़्यादा उलझने लगे और उसके सर में बहुत दर्द होने लगा, तो एक रोज़ उसने बस्ती से एक बुढ़िया को बालों की मेंढियाँ करने के लिए बुलवा लिया ताकि बाल बिखर कर उलझने से महफूज हो जाएं। जिस रोज़ बुढ़िया जंगल में शहजादी के पास आई, जंगली मौजूद नहीं था। बुढ़िया दिन भर शहजादी के बालों में कंघी करती रही। वो दोनों मिलकर रोती रहीं, शहजादी बालों के दर्द से और बुढ़िया शहजादी की खस्ता हाली पर। उस रात जब जंगली शहजादी के पास कुटिया में लेटा तो बहुत उदास था। उसने शहजादी के बालों में उंगलियां फेरने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे बड़ी हैरत हुई। जंगली उठकर बैठ गया और उसकी आंखें बुरी तरह जलने लगीं। शहजादी को जंगली के नाराज़ होने का एहसास हो गया और उसने एक एक करके सारी मेंढियां खोल दी, मगर जंगली ने अपनी उंगलियां शहजादी के बालों में नहीं उतारी। शहजादी रात भर जंगली के हाथों की उंगलियों के लम्स की मुंतज़िर रही, मगर वो तमाम रात सोता रहा। कुछ दिनों के बाद जब वो बुढ़िया
दोबारा शहजादी के पास आई तो शहजादी ने उसे मेंढियाँ बनाने से मना कर दिया। वो दिन भर शहजादी के उलझे बाल संवारती रही, यहाँ तक कि शहजादी के सर से काफ़ी बाल उतर गए। वो दिन भर इधर उधर की बातें करती रहीं। शहजादी चूँकि जंगली से बहुत कम बातें करती थी, इसलिए बातों की सारी भड़ास उसने बुढ़िया के आगे निकाल दी। बातों बातों में बुढ़िया ने शहजादी से कहा, ये जंगली कौन है, कहाँ से आया है और उसकी ज़ात कबीला क्या है और यहाँ क्या कर रहा है। शहजादी ने उससे ये बातें कभी पूछी ही नहीं थी और ना ही उसे इन बातों से कोई मतलब था। शहजादी ने बुढ़िया से कहा, मुझे इससे क्या गर्ज कि वो कौन है, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मैं उसके साथ रह रही हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत और मनमोहना है। जी चाहता है कि हर वक्त उसे देखती ही रहूं। फिर भी पूछने में क्या हर्ज है, आखिर किसी ज़ात कबीले का तो होगा ही। अच्छा तुम कहती हो तो पूछ लूँगी, अभी तुम बाल बनाओ और अपनी राह लो। बुढ़िया के जाने के बाद शहजादी इसी सोच में गुम रही कि वो उस जंगली से उसकी ज़ात कबीला कैसे पूछेगी। वो तो उससे बोलता ही कम है, बस देखता रहता है। उसे तो वो कोई शहजादा लगता है जो तख्त व ताज छोड़कर यहाँ गुमनामी में ज़िंदगी गुजार रहा है। इसीलिए उसकी चाल में बिल्कुल शहजादों का वकार है और उसके चेहरे पर बला की कशिश है। फिर एक रोज़ कुटिया में लेटे लेटे शहजादी ने जंगली से पूछ ही लिया, तुमने अभी तक मुझे अपना नाम तो बताया ही नहीं, क्या मैं अब भी तुम्हारे लिए गैर हूँ? नहीं, तुम तो मेरे इतने करीब आ गई हो कि अब मुझे तुम्हारे अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे आने से पहले मैं जंगल में बिल्कुल दूसरी तरह की ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं इंसानी हुस्न की रानाइयों में खो गया हूँ। तो फिर अपना नाम बताओ ना। मगर मेरा तो कोई नाम ही नहीं, फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारा कोई नाम ना हो, कोई कौम कबीला ना हो? शहजादी सच कहता हूँ, मेरा ना तो कोई नाम है और ना ही ज़ात कबीला। शहजादी को जंगली की बातों का यकीन ना आया। ये भला कैसे हो सकता है कि किसी का कोई नाम ना हो? यकीनन जंगली उससे कुछ छुपा रहा है। फिर एक रोज़ जब शहजादी ने बुढ़िया से जंगली की बातों का जिक्र किया तो उसने वही जवाब दिया जो शहजादी के दिल में था। जंगली वाकई उससे कुछ छुपा रहा था। शहजादी सोच रही थी कि वो जंगली के लिए सारी दुनिया को त्याग कर फिर भी उसका एतमाद हासिल न कर सकी। वो आज भी उसके लिए गैर औरत है। उस रात जब जंगली फरगल की जेबें पीले पत्तों से भर के शहजादी के पास आया तो शहजादी ने पत्ते खाने से इनकार कर दिया। जंगली को बड़ी हैरत हुई। वो उसके करीब बैठकर उसे देखने लगा। काफ़ी देर बाद उसने शहजादी से पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो शहजादी? मुझे तुमसे नाराज़ होने का क्या हक पहुंचता है? मगर मेरा कसूर क्या है? कसूर तो मुझसे हुआ है, जिसने महलों की आसाइशें छोड़कर तुम्हारी कुटिया में डेरा लगा लिया है, और तुम हो कि अभी तक मेरे लिए अजनबी हो, मुझे अपना नाम तक नहीं बताते। तो तुम इस बात पर मुझसे खफा हो गई हो? क्यों ना हूँ, क्या ये गैरियत नहीं है? जंगली की आंखें यकायक चिंगारियों की तरह जलने लगीं। फिर धीरे धीरे उन आंखों से राख झड़ने लगी और जंगली ने बहुत आहिस्तगी से कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें अपना नाम, ज़ात और कबीला सब कुछ बता दूंगा। ये लो पत्ते खाओ। उस शाम वो जंगली शहजादी को साथ लेकर दरिया के किनारे तक गया। वहाँ पहुँचकर जंगली ने अपना फरगल उतार कर शहजादी को दिया। बहुत देर तक उसे देखता रहा और फिर धीरे धीरे अपने कपड़ों में सिमटने लगा। फिर शहजादी के देखते ही देखते उन सिमटे हुए कपड़ों के अंदर से फुंकारता हुआ एक सांप निकलकर लहराया और तेजी से रेंगता हुआ दरिया में उतर गया। शहजादी ने कुछ देर तक ये मंजर देखा। फरगल उसके हाथ से सरक कर नीचे गिर गया और फिर वो एक चीख मारकर जंगल की तरफ भाग गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।